أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين والمقربين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 21 سے آگے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو جتنی بھی آیت ہم نے اب تک سورہ بقرہ میں پڑھی اس میں تیسرے شخص کی طرف اشارہ کر کے بات کی جا رہی تھی، یعنی جیسے وہ کفر کرتے ہیں، وہ جو کفر کرتے ہیں، وہ جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، دوز دیم دے، تھرڈ پرسن میں بات ہو رہی تھی۔ اور اب اللہ سبحانہ تعالیٰ اب اس آیت میں ڈائریکٹ ہم سے بات کریں، اور صرف مومنوں سے بات نہیں کر رہے بلکہ ساری انسانیت، ہر ایک انسان سے بات کر رہے ہیں۔ ناس جو ہے وہ پلورل ہے، جمع ہے انسان کا۔ یا کہا گیا یا ایوہ الناس، اے لوگوں۔ ناس یہ جو ورڈ ہے یہ نکلا ہے انسان، نسیان سے۔ نسیان کہتے ہیں فرگیٹفلنس کو، اور انسان بھولنے والا ہے، انسان کی فطرت ہے بھولنا۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دنیا میں انسان کو بھیجنے سے پہلے ہر ایک سے ایک وعدہ لیا تھا کہ وہ اپنے رب کی عبادت کریں گے، اور یہ وعدہ ہم بھول گئے ہیں۔ تو یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ ناس کہہ کر ہمیں خطاب کر رہے ہیں کہ اے لوگو، تم بھول گئے ہو کہ تمہارا ایک رب ہے، اور تمہیں یاد دلایا جا رہا ہے کہ تمہیں عبادت کرنی ہے اپنے رب کی۔ ناس ایک اور ورڈ سے نکلا ہے آناسا۔ ای ناس عربک میں کہتے ہیں وہ جو دکھتا ہو، اور اس کا اپوزٹ ہے جنہ، جو کہ نہیں دکھتا۔ جنہ کا مطلب ہے جو نہیں دکھتا، تو جن جو ہے وہ جنہ سے نکلا ہے۔ جنت بھی جنہ سے نکلا ہے کیونکہ وہاں مٹی وغیرہ نہیں دکھتی۔ ماں کی کوکھ کو بھی جنین کہتے ہیں کیونکہ اس میں بچہ چھپا ہوا ہوتا ہے۔ اور ناس ایک اور ورڈ سے نکلا ہے جو کہ ہے انس، اور انس جو ہے وہ وحش کا اپوزٹ ہے۔ وحش اردو میں بھی ہم کہتے ہیں وحشی جانور، اور انس کا مطلب ہوتا ہے ہمدردی، کمپیشن، لو، مرسی۔ انس انسانیت، یعنی انس کا یعنی رحم کرنا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کبھی کبھی وحشی جانور سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ تو انسان جو ہے اس میں کیپیبلٹی ہے کہ وہ مرسی رکھے، کمپیشن رکھے، لو ہو اس کے اندر دوسرے لوگوں کے لیے، اور جیسے گھر والوں کے لیے، خود کے لیے، پڑوسیوں کے لیے، جانوروں کے لیے، پودوں کے لیے۔ تو یہ ایک انسان کی کوالٹی ہے۔ تو یہاں کہا گیا کہ یا ایوہ الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگوں عبادت کرو اپنے رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا۔ اس سے پہلے ہم نے 3 طرح کے لوگوں کے بارے میں پڑھا، مومن، کافر اور منافق، اور ڈیٹیل میں پڑھا کہ وہ کیسے ہوتے ہیں، ان کے کیا کیریکٹرسٹکس ہوتے ہیں۔ تو پڑھنے والا یہاں سوچتا ہے کہ میں ان میں سے کیا ہوں، اور بہت سے لوگ جو ایسے ہیں جو ان تینوں میں سے ایک بھی کیٹیگری میں نہیں آتے، جو نیوٹرل ہیں، جو یعنی نہ مومن ہے، نہ ہارڈ کور کافر ہیں، اسلام کے خلاف بھی نہیں ہے، جو منافق بھی نہیں ہے۔ تو اب یہاں پہ جو نیوٹرل ہے اور جو قرآن کو سمجھ رہے ہیں، جو پڑھ رہے ہیں، اب ان سے کہا جا رہا ہے کہ تمہیں ایک اب اس میں سے اختیار کرنا ہوگا۔ You have to choose one side۔ اب تمہیں ڈیسائیڈ کرنا ہوگا کہ تم کیا ہو۔
اور कामयाब वही है जो मोमिन है, जो मुत्तकी है वही कामयाब है। तो अब हमारे लिए ये एक कॉल है कि तुम्हें एक रास्ता चुनना होगा। तो अब यहाँ कहा गया कि जो हमारा दीन है वो खोखली फिलॉसफी नहीं है, कोई सोच नहीं है, कोई माइथोलॉजी नहीं है, बल्कि हमें इसमें काम करना होगा। हमें यहाँ पे बुलाया जा रहा है कुछ करने के लिए, कोशिश करनी होगी, मेहनत करनी होगी। ये कोई बस बोल देना या दिल में सोच लेने वाला मजहब नहीं है। इबादत कहते हैं अल्लाह के सामने अपनी आजिज़ी और इनकिसारी का इजहार करना, यानी अपने आप को अब्द मानना और अल्लाह को अपना माबूद मानना। और ये अल्लाह सुब्हानहू तआला जबरदस्ती नहीं करते हमसे। ये हमें एक चॉइस दे रखी है, हमें एक छूट दे रखी है, हम खुद अपने लिए इसको चूज करते हैं। अगर अल्लाह सुब्हानहू तआला चाहते तो ये करवा सकते थे जबरदस्ती भी, कि जबरदस्ती तुम्हें वो सब कुछ मानना है जो अल्लाह ने हमारे लिए। लेकिन ये हमारा एक इम्तिहान है, ये दुनिया की जिंदगी। तो हमें इसमें से अब हमारे पास चॉइस है कि हम माने या ना माने। हर इंसान का दूसरे से एक रिश्ता होता है। माँ का बच्चे से एक रिश्ता होता है, हस्बैंड वाइफ का एक रिश्ता होता है, अपने नेबर्स के साथ हमारा एक रिश्ता होता है। अगर कोई एम्प्लॉई है और कोई एम्प्लॉयर है तो उसके अंदर भी एक रिश्ता होता है, रिलेशन होता है। दो बिजनेस पार्टनर्स हैं तो उनका भी एक रिश्ता होता है, दोस्तों का भी रिश्ता होता है। और हर रिश्ते में कोई ना कोई हक होते हैं, हुकूक होते हैं, और कोई ना कोई जिम्मेदारी होती है, राइट्स होती हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। हर एक के ऊपर दूसरे की राइट्स होते हैं और हर एक के लिए दूसरे के ऊपर के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जैसे अगर बच्चा है तो बच्चे की कुछ हक है अपने माँ बाप से, कि वो पढ़ाई करेगा, उसको खाना पीना कपड़े उसके माँ बाप की तरफ से मिलेंगे। और माँ बाप के भी कुछ हक है बच्चे की तरफ से, जब वो बड़ा हो जाएगा तो वो अपने माँ बाप का ध्यान रखेगा। और उसी तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं, हर एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक दूसरे की तरफ। तो हमारा अल्लाह से क्या रिश्ता है? अल्लाह अल्लाह के बहुत से नाम हैं जिससे हमारा उससे रिश्ता जाहिर होता है। जैसे अगर अल्लाह खालिक है तो हम मखलूक हैं। अल्लाह अगर हिदायत देता है तो हम हिदायत पाते हैं और हम हिदायत पर चलते हैं। अल्लाह अगर रहम करता है, रहमान है, तो हम पर उसकी रहमत आती है और हम उसका फायदा उठाते हैं उस रहमत से। लेकिन ये सारे सेकेंडरी हैं। जो प्राइमरी, जो सबसे असल, जो बुनियादी रिश्ता हमारा अल्लाह के साथ है वो है रब का और अब्द का। वो हमारा रब है और हम उसके अब्द हैं। तो रब क्या है? रब होता है खालिक, मालिक, मुदब्बिर, जो बनाता है, जो पालता है, जो नेमतें देता है, जो हमें बचाता है, जो हमें मेंटेन करता है, जो हमें वो सब कुछ हमारा रब करता है हमारे लिए। और रब का हम पर कोई कर्ज नहीं है, यानी जो कुछ भी वो हमें देता है वो उसकी मेहरबानी है, वो उसका एहसान है। हमने कोई कर्ज नहीं दे रखा कि हमें पानी तो मिलना ही चाहिए, हमें खाना तो मिलना ही चाहिए, हम डिजर्व करते हैं या हम किसी तरह से इसके हकदार हैं, हमें तो ये मिलना ही चाहिए, इतना तो हमें मिलना ही चाहिए, ये तो होना ही चाहिए, अल्लाह को इतना तो हमारे लिए करना ही चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है। अल्लाह हमारे लिए अ, कोई अल्लाह कोई हमारा कर्जदार नहीं है कि हमें वो दे ही दे जो हम सोच रहे हैं। तो इसका लिटरल मीनिंग है कि जो रिश्ता है रब और अब्द का, वो है आका का, मालिक और गुलाम का। जो हमारा रिश्ता है, हम उसके गुलाम हैं और वो हमारा मालिक है, हमारा आका है। अब इसको और अच्छे से समझते हैं कि जैसे एक एम्प्लॉय होता है तो उसका हक है कि उसे सैलरी मिले। अगर कोई सर्वेंट है, अगर कोई अ, नौकर है, तो उसकी नौकरी की उसे उसका हक है कि उसे जो उसने काम किया उसकी सैलरी मिले। लेकिन हम स्लेव हैं, हम अब्द हैं, हम जो है वो अल्लाह के गुलाम हैं। हमारा कोई हक नहीं है। हम कोई काम करते तो उसका जरूरी नहीं कि हमें उसके बदले में हमें कुछ मिलना ही चाहिए। हमारा कोई हक नहीं है और उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। अब देखें कि दुनिया में अगर कोई आका है, कोई मालिक है, कोई मास्टर है और उसका कोई स्लेव है, गुलाम है, तो वो जो मालिक होता है वो उसके साथ कैसा बर्ताव करता है?
कौन सा मालिक है जो अपने अपने स्लेव के साथ, अपने गुलाम के साथ बे इंतहा मोहब्बत करता है? कौन सा मालिक है जो अपनी इंसान जो उसके गुलाम की गलतियों को माफ करता रहता है, चाहे कितनी भी बड़ी गलती हो उसको माफ कर देता है? यहाँ ये होता है कि उसी समय उसको सजा देता है। अगर उसने गलती की है तो उसको सजा मिलेगी, अगर उसने नाफरमानी की है तो उसको सजा मिलेगी। लेकिन अल्लाह ऐसा नहीं है। अल्लाह हमारी बहुत सी नाफरमानियों को दरगुजर करता है। अल्लाह को हम माने या ना माने, कुछ लोग अल्लाह को बुरा कहते हैं, कुछ लोग कुरान को जला देते हैं, मतलब हद से ज्यादा गलत काम करते हैं, लेकिन अल्लाह उन पर रहम करता ही रहता है। ऐसे लोग भी खाना खाते हैं, ऐसे लोगों को भी अल्लाह सेहत देता है, ऐसे लोग भी खुश रहते हैं, इनको भी खुशियां मिलती है। तो जो हम सोचते हैं कि मास्टर और स्लेव का जो रिलेशन है वो हमारे अ, जो हमारे दिमाग में जो हमारी सोच है उसके हिसाब से बहुत घटिया रिलेशन है। लेकिन जो अल्लाह हमारा जो मास्टर है वो क्या नहीं करता अपने बंदे के लिए? अल्लाह हमें दिन रात नवाजता है, हर दिन हमें नेमतें देता है, हमें खुशियां देता है, और जो हम दुआ के जरिए उससे मांगते हैं वो हमें अता भी करता है। कौन सा ऐसा दुनिया का मास्टर है जो अपने स्लेव को मांगने पे जो वो मांगता है वो उसे देता है? तो ये इस्लामिकली कोई बुरी टर्म नहीं है, बल्कि एक एजाज है कि हम उसके गुलाम हैं, हम उसके बंदे हैं, हम उसके स्लेव्स हैं, और वो हमारा मास्टर है, वो खालिक है, वो बनाने वाला है, वो हमारा मालिक है। और वो हमें उसने हमें बनाया, उसने हमें उसके बाद जीने के लिए हर ज़रूरत हमारी पूरी की, ज़रूरतें हमारी पूरी की, उसके बाद हमें वो हिदायत भी देता है कि हमें किस तरह से ज़िंदगी को जीना है। और उसने हमें चॉइस भी दे रखी है, चाहे आप मानो या ना मानो, चाहे अल्लाह की इबादत करो या ना करो, ये चॉइस भी अल्लाह ने हमें दे रखी है। या अय्युहन नासु, ए लोगों, उबुदू रब्बकुम, इबादत करो अपने रब की, अल्लज़ी, जिसने खलक़कुम, पैदा किया तुमको, वल्लज़ीना, और उनको, मिन क़ब्लिकुम, जो तुमसे पहले थे। यानी तुमसे पहले के लोगों को भी अल्लाह ने ही खल्क किया है, उनको भी अल्लाह ने ही बनाया है, चाहे वो किसी की भी इबादत करते हो, उनको मत फॉलो करो। उनको उनको मत देखो कि वो किसकी इबादत करते थे, हमारे माँ बाप तो उसकी इबादत करते हैं, या हम हमारे से पहले के लोग तो वो उसको मानते थे अल्लाह, उसको भी, उन लोगों को भी बनाने वाला अल्लाह ही है। तो तुम अल्लाह की इबादत करो, लअल्लकुम, ताकि तुम तत्तकून, तुम बच जाओ। अगर अल्लाह की इबादत करोगे तो बच जाओगे। किससे बच जाओगे? इससे पहले वाली जो आयत आई थी सारी, काफिर बनने से बच जाओगे। अल्लाह की जो सजाएं काफिरों पर उतरी कि उनको गूंगा, बहरा और अंधा वो हो गए, अंधे हो गए, वो नहीं समझ सकते, वो जान नहीं सकते, उनके दिलों के नूर छीन लिए गए। उन सारी आ, उन सारी सजाओं से तुम बच जाओ, और आगे आने वाली सजाओं से भी बच जाओ, जो कि इंसान को उसके आमाल के बिना पर मिलेगी कयामत के दिन। तत्तकून तकवा से है। तकवा का मतलब होता है परहेजगारी करना, बचना, अपने आप को बचा लेना। किससे? अल्लाह के गुस्से से बचा लेना। और तकवा का मतलब होता है डर, अल्लाह का डर। तकवा के मतलब का मतलब होता है एक तो बचना, और किस वजह से बचना? अल्लाह के डर से बच जाना, सजा के डर से बचना। आयत नंबर 22, अल्लज़ी, वो जिसने, अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ इशारा है, वो जिसने जअला, बनाया, लकुम, तुम्हारे लिए, अल अर्द, जमीन को, फिराशा, फर्श। फिराश कहते हैं बेड को, यानी जो सॉफ्ट बेड बिछा के जमीन पर सोया जाता था पहले जमाने में, उसे कहते हैं फर्श, फिराश। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जमीन को नर्म बनाया है हमारे लिए, उसे सख्त नहीं बनाया। हम उसके अंदर बीज बो सकते हैं, उसे खोद सकते हैं, उसके ऊपर कंस्ट्रक्शंस कर सकते हैं, हम उसको खोद कर जमीन में से बहुत सी नेमतें निकाल सकते हैं अल्लाह की, बहुत से
मेटल्स वगैरह हमें जमीन के अंदर से मिलते हैं जब हम उसे खोदते हैं। हम पहाड़ों को खोद के रास्ते बना पाते हैं। हमारे लिए जमीन को नरम बनाया ताकि हम उसमें उस पर सो सकें। जो रेतीली जमीन है रेगिस्तान की, उस पर जो नोमैड्स होते थे, बिदुन होते थे, वो उस पर चलते थे, उसी पर सोते थे, उसी पर और वह समा बिना और आसमान को बनाया छत। देखिए आसमान कितना खूबसूरत अल्लाह सुब्हान तआला ने बनाया है। आसमान पे जो बादल है और जो उसके रंग रंग हमें मिलते हैं देखने को, जब फजर के वक्त अलग, मगरिब के वक्त अलग कलर्स में होता है, और रात में जो सितारे और उस पर चांद होता है, वो कितना खूबसूरत लगता है। कितना जो छत है, मतलब कहने का मतलब ये कि पूरी दुनिया को, जमीन को अल्लाह सुब्हान तआला ने तुम्हारे लिए घर बनाया है। जो जमीन है तुम्हारा बिछौना है और तुम्हारी छत आसमान है, और कितना खूबसूरत बनाया है। उसे ऐसे ही नहीं बना के दे दिया हमें। अगर आसमान को हम देखें कि अगर वो आसमान ऐसा ना होता, यानी आसमान अगर हमारे सर पर ना होता और कुछ ऐसा खोखली सी कोई चीज होती, या कोई अंधेरा सा होता, कोई अ, रात को भी अगर आप देखें, रात में अगर आसमान पर सितारे और चांद ना हो तो वो एक एक दहशत देता है। और अगर आसमान उसी तरह से होता, अगर आसमान होता ही नहीं, यानी वो जो नीला रंग हमें ऊपर दिखाई देता, अगर वो नहीं होता और कोई खोखला सा कुछ होता ऊपर जिसे हम देख नहीं सकते, और जो बस आप इमेजिन करें कि कैसा होता अगर आसमान ना होता, तो कितना भयानक होता। अगर आसमान पर धुंध छाई हुई होती और आसमान नजर नहीं आता कभी कभार, तो भी हमें अच्छा नहीं लगता। तो अगर देखें, अगर वो ना होता तो कैसा होता, या अगर धुंध छाई हुई होती, अगर हमें ऊपर कुछ नजर नहीं आता तो कैसा होता। तो कितनी खूबसूरत हमारे लिए जमीन बनाई है और कितना खूबसूरत हमारे लिए आसमान बनाया है, और ऐसा खूबसूरत हमें पूरी दुनिया हमारे लिए घर की तरह है। वह अनजरा मिनस समाई मा, और उसने उतारा आसमान से पानी। पानी कितनी बड़ी नेमत है। पानी जो अल्लाह सुब्हान तआला हमें हमारे लिए आसमान से उतारता है, कितना प्योर पानी जो उतरता है, जिसे हम पीते हैं, जिससे हमारी प्यास बुझती है, जो हमारे दिन भर की जरूरतों का कितना बड़ा हिस्सा है। पानी से दुनिया की कितनी खूबसूरतियां हैं। पानी जब बहता है नदियों के नदियों की तरह, जब समुंदर में दिखता है, जब लहरें उठती है, जब तालाबों में होता है, तो कितनी खूबसूरती और कितनी खुशी देता है हमें। और पानी जब बर्फ की तरह गिरता है, तो पानी जो आसमान से उतारा है वो खुद कितनी बड़ी नेमत है। और उसी पानी के जरिए अल्लाह सुब्हान तआला ने हमारे लिए पौधे, फल, फ्रूट, पेड़, सब सारी अनाज उगाए। तो यहाँ लिखा है फ़अख़रज, फिर उसने निकाला, बिही, साथ उसके, यानी पानी की तरफ इशारा है, ही जो है वो पानी के लिए है। तो उसके जरिए उसने उगाया मिनस मिनत समराती, रिस्क यानी फल, फ्रूट्स। आप देखिए फ्रूट्स कितने अलग अलग कलर्स में अल्लाह सुब्हान तआला ने हमें दिए। कितने कलर्स हैं, कितने फ्लेवर्स हैं, कितना अच्छा टेस्ट है, कितना स्वीट, कितना मीठा वो हमारे लिए बनाया है, हमारे खाने को। और उसकी साइज वो हमारे हाथ में आ जाता है, और वो उसकी रैपिंग, उसके ऊपर जो कवर है, जो एक तरह से गिफ्ट है हमारे लिए। जब हम उसे खोलते हैं तो हमें नहीं पता अंदर एक सरप्राइज है, खटमिठ होगा या खट्टा होगा या मीठा होगा, या पता नहीं अंदर से कैसा होगा। और उसके बाद वो जो उसकी रैपिंग है वो कचरा नहीं करती, उसको आप जमीन में डाल दें, वो फिर से जमीन में खाद बनाने का काम करती है। हमारे गिफ्ट्स जो हमारी रैपिंग्स होती हैं वो कितना कचरा करती हैं। और फ्रूट्स के अंदर विटामिन है, जो हमारी जरूरत के सारे सामान है वो उसमें है। और अगर अल्लाह सुब्हान तआला चाहते तो हमें इतनी खूबसूरती से, इतने अच्छे टेस्ट वाला, इतनी अच्छी खुशबू वाले फ्रूट और खाना देने की बजाय, अगर वो चाहते तो हमें विटामिन और मिनरल्स की गोलियां दे देते, जो पेड़ों पे लगती, जो हम खा लेते। उससे भी हमारी जरूरतें पूरी हो जाती, उससे भी हमारी जिंदगी निकल जाती। लेकिन अल्लाह की नेमतें देखें कि वो कितनी नेमतें हम पर उतारता है दिन रात, पानी के रूप में, फल के रूप में। अगर अल्लाह हम चाहता तो हमें ऐसे भी खाना दे सकता था जैसे उसने जानवरों को दिया। जानवर खाते हैं,
घास फूस खा लेते हैं, या कोई उनके लिए प्लेट नहीं होती, कोई खूबसूरती से सजाया हुआ खाना नहीं मिलता उन्हें, वो पका के नहीं खाते, बस ऐसे ही जो मिल जाता है उसे चर लेते हैं। अ, जो जानवर एक दूसरे जानवर को चीड़ फाड़ के खाते हैं, वो किस तरह से खाते हैं? वहशी जानवर जब खाते हैं, और अगर अल्लाह चाहता तो हमें कॉकरोचेस के शेप में खाना दे देता कि बस ये खा लो, या कोई गंदी चीज के, यानी कुछ भी हमें मिल सकता था, लेकिन हमें कितना बेहतरीन खाना और पानी और कितने बेहतरीन तरीके से मिला है। जो फ्रूट्स पेड़ों पे लगते हैं वो कितने खूबसूरत पेड़ होते हैं, उनके कितने अच्छे, उनके ऊपर कितने अच्छे फूल लगते हैं फल आने से पहले, और किस तरह से हम उन्हें पकाते हैं और उनका टेस्ट हम चेंज करते हैं, हम कुछ ना कुछ डालते हैं उसमें और उसका टेस्ट हम चेंज भी करते हैं, और तरह तरह के फ्लेवर्स और अलग अलग टेस्ट का खाना हमें मिला है, जो दूसरे जानवरों को नहीं मिला उस तरह से। तो रिस्क के तौर पर हमें क्या क्या दिया अल्लाह ने? फला, तो पस नहीं, पस ना, तजआलू, तुम बनाओ, लिल्लाही, अल्लाह के साथ, अंदादा, शरीक, अल्लाह के साथ कॉम्पिटिटर्स मत बनाओ, अल्लाह के साथ कोई शरीक मत बनाओ, अल्लाह के बराबर किसी को लाके मत खड़ा करो। इतना सारी नेमतें, इतनी सारी नेमतों को याद दिलाने के बाद अल्लाह सुब्हानहू तआला हमसे कह रहे हैं कि अब तुम किसी को मेरे बराबर ना खड़ा करो, किसी को शरीक ना करो। आप देखें, जो चीज, कोई भी एक चीज है जो आपने बनाई है, कोई खाना बनाया है, कोई डिश बनाई है, या कोई पोएट्री लिखी है, या कोई कोई नई चीज आपने, कोई पेंटिंग बनाई है, और उसके बाद आपने वो चीज बनाई है और कोई उसके अंदर अपना क्रेडिट ले, कहे कि इसको आइडिया मैंने दिया था, जबकि उसका कोई शेयर नहीं था, आपने खुद अकेले बनाई वो सब कुछ। या कोई कहे कि मैंने तो सिखाया है, या कोई कहे कि थोड़ा बहुत मैंने भी बनाया है, कैसा लगेगा आपको? कितना बुरा लगेगा जब हम कोई चीज बनाते हैं और हमारा कोई क्रेडिट ले लेता है उसका बनाने का। अल्लाह सुब्हानहू तआला बनाने वाला है, वो हमारा मास्टर है, उसने हमें इतनी सारी नेमतें अता की, और उसके साथ हम किसी को उसके बराबर लाके खड़ा कर दें कि वो भी अता करने वाला है, ये भी अल्लाह के बराबर है। अल्लाह के बराबर कुछ नहीं है, अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना करो। व अंतुम, और तुम, तालमून, तुम जानते हो, तुम ये सारी चीजें जानते हो कि बनाने वाला सिर्फ अल्लाह है, और हर एक शख्स, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे नॉन मुस्लिम हो, इस बात को मानता है कि हर चीज बनाने वाला अल्लाह है। फिर भी उसके साथ किसी ना किसी को शरीक कर देता है, किसी और से भी मांगने लगते हैं हम, जैसे अल्लाह से मांगना चाहिए, और हम इधर उधर लोगों के पास जाने लगते हैं, मदद मांगने के लिए, सेहत मांगने के लिए, पीर फकीर के पास जाने लगते हैं, न जाने कैसे कैसे गुनाह करते हैं अल्लाह के साथ किसी को शरीक करके। अल्लाह के साथ शरीक ठहराना है क्या? कुछ लोग होते हैं जो बुतों की पूजा करते हैं, या जानवरों की पूजा करते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो फरिश्तों को अल्लाह की बेटियां कहते हैं, या ईसा नबी को अल्लाह का बेटा कहते हैं, या कहना कि या ये कहना कि अल्लाह के साथ और भी कोई है जो अता करता है और उससे भी मांगा जा सकता है, या दरगाहों पर जाकर मांगना। जितने भी नबी हैं, सालिहीन हैं, शोहदा हैं, सिद्दीकीन हैं, वो अल्लाह ही के बंदे थे, और वो भी अल्लाह ही से मांगा करते थे। अल्लाह सुब्हानहू तआला की रजा के लिए, दीन इस्लाम के लिए उन्होंने बड़ी बड़ी कुर्बानियां की, और वो शहीद भी हुए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद सिदरतुल मुंतहा पर पहुंचे, तो उसके बाद भी अल्लाह के बंदे कहलाए। ये ठीक है कि हम नेक लोगों को ऊंचा मकाम दें, उनको आइडल माने, उनको अपना इमाम माने, उनकी जिंदगी से जिंदगी जीने का तरीका सीखें, लेकिन उन्हें अल्लाह के बराबर शरीक न ठहराएं। एक बार एक शख्स रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, और बात करते करते उसने कहा कि वही होगा जो अल्लाह चाहेगा और आप चाहेंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े नाराज हुए और कहा कि क्या तुम मुझे अल्लाह के बराबर मकाम देते हो, या तुम मुझे अल्लाह के बराबर ठहराते हो? इसके अलावा दुनिया की कोई भी ऐसी चीज जिसको हम अल्लाह के हुक्म के आगे रखें, तो वो भी अल्लाह के बराबर ठहराना कहलाया। जैसे आपकी जॉब है, या बच्चे हैं, या माँ बाप है, या दोस्त हैं, या
کوئی ایسی بات کہے اور آپ اس کی ایسی بات مانیں جس میں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو، تو یعنی آپ نے اللہ کے برابر اسے کھڑا کر دیا. یا آپ یہ کہیں کہ کوئی ایسی بات جس میں ہم اپنی خواہشات کی پیروی کریں یا ہم اپنی مصروفیات کی وجہ سے اللہ کے کسی حکم کو پیچھے رکھ دیں، جیسے جاب زیادہ امپورٹنٹ ہے نماز پڑھنے سے، یا کوئی اور ایسا کوئی بہت سے ایسے ہم امپورٹنس دیتے ہیں کسی اور چیز کو اللہ کے آگے، تو یہ کرنا بھی اللہ کے برابر کسی کو ٹھہرانا ہوا. دنیا میں اگر ہم دیکھیں تو عبد جو ہے وہ یا جو غلام یا سلیو جسے کہتے ہیں، وہ سب سے لوور انسان کے لیے سب سے لوور سٹیٹس ہے، سب سے کم درجہ ہے، سب سے کم جو جس سے کم کچھ نہیں سوچا جا سکتا کہ کوئی کسی کا غلام ہے یا کوئی کسی کا سلیو ہے. لیکن جب یہ ٹرم اللہ کے لیے اور اس کے بندوں کے لیے یوز میں آتی ہے تو یہ سب سے زیادہ عزت کی بات ہے، سب سے بڑا مرتبہ ہے. دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنا عبد کہتے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پہنچے؟ جب وہ معراج پہ سب سے اونچی جگہ پہنچے جہاں کوئی مخلوق اللہ کی نہیں پہنچ سکی، یہاں تک کہ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اس سے اوپر اب میں نہیں جا سکتا، تو وہاں پہنچتے وقت بھی رسول اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا عبد کہہ کے پکارا، یعنی وہ سب سے بڑا مرتبہ ہے. اگر ہم اللہ کے بندے بن جائیں تو یہ ہمارے لیے سب سے بڑی سعادت ہے، سب سے بڑا لیول ہے. اور اللہ کے ساتھ نہ کسی کو شریک کرو. یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اس بات کو سمجھیں کہ جب اللہ کا بندہ بننا ہوتا ہے تو اللہ کی ہر بات کی اطاعت کرنی ہوتی ہے کہ بس ہم نے سنا اور ہم نے مان لیا. تو ہم یہ چوز کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم اللہ کے عبد ہیں، ہم اللہ کے سلیو ہیں، وہ ہمارا ماسٹر ہے، وہ ہمارا رب ہے اور ہم اس کے عبد ہیں. تو اس کے بعد ہم اپنے آپ کو ہر دوسری سلیوری سے فری کر لیتے ہیں. یعنی اب ہم کیونکہ ہم اللہ کی بات مان رہے ہیں، اللہ نے ہمیں وہ سٹیٹس دیا ہے، وہ مرتبہ دیا ہے کہ ہم اس کے بندے ہیں اور یہ سب سے بڑا مرتبہ ہے، تو اس کے بعد ہمیں اب کسی اور کی نہ خوشامد کرنے کی ضرورت ہے، نہ کسی اور کے یعنی تلوے چاٹنے کی ضرورت ہے، نہ اور کسی کو خوش کرنے کی ضرورت ہے. اب ہمیں صرف اللہ کو خوش کرنے کی ضرورت ہے، اللہ کے حکم پہ چلنے کی ضرورت ہے اور کسی کی پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو اگر ہم نے اپنے آپ کو اللہ کو کے سپرد کر دیا ہے تو اب ہم باقی چیزوں سے فری ہو گئے. یعنی نہ اب ہم فیشن کے سلیو ہیں، نہ ہم کسی کلچرل پریکٹس کے سلیو ہیں، نہ ہم کسی کے پیئر پریشر کے سلیو ہیں کہ بھئی دوستوں نے کہا ہے تو اب ہمیں کرنا ہی ہوگا. اب ہم اپنے آپ کو آزاد کر دیا. جب ہم نے اللہ کا سلیو اپنے آپ کو بنا دیا ہے تو ہم نے باقی چیزوں سے اپنے آپ کو آزاد کر لیا ہے. باقی اور ہر چیز اور ہر ایک ریلیشن میں ایک رسپانسبلٹی ہوتی ہے جس کا حق ہمیں دینا ہے، جس کا ہمیں جس کے ساتھ ہمیں احسان کرنا ہے. لیکن اب ہمیں جو کچھ بھی کرنا ہے صرف اللہ کی خوشی کے لیے کرنا ہے، اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے. اپنے ماں باپ کی اطاعت کرنی ہے لیکن اللہ کی رضا کے لیے. اپنے ہسبینڈ کے حقوق دینے ہیں لیکن اللہ کی رضا کے لیے. اپنے بچوں کو پیار کرنا ہے لیکن اللہ کو خوش کرنے کے لیے، بچوں کو خوش کرنے کے لیے نہیں، کسی اور کو خوش کرنے کے لیے. ان دا اینڈ ہم کسی کو خوش نہیں کر سکتے. اگر ہم چاہیں کہ یہ ہم ایسا کچھ کریں گے تو یہ خوش ہو جائے گا، کبھی کوئی شخص کوئی انسان دوسرے سے خوش نہیں ہوتا. کچھ تھوڑے عرصے کے لیے اگر وہ اس کا احسان مان بھی لے تو بس باقی وہ بھول جاتا ہے. لیکن اگر ہم نے کوئی کام، کسی کی مدد، کسی کے لیے کچھ کیا ہے اور اللہ کی رضا کے لیے کیا، اللہ کی خوشی کے لیے کیا ہے، تو اللہ اس کا اجر دے گا اور پورا پورا دے گا اور اس سے زیادہ بڑھ کر دے گا. کوئی ہمارے لیے کسی کے لیے اگر ہم کچھ کر بھی دیتے تو وہ ہمارے لیے بدلے میں کیا کر لیتا ہے؟ تھینک یو کہہ دیتا ہے، یا ہماری کوئی تعریف کر لیتا ہے، یا ہمیں یا ہمارے لیے اتنا کر لے گا جتنا ہم نے اس کے لیے کیا. بدلے میں اگر کوئی بہت زیادہ کوئی ہے جو آپ کے احسانوں کو اتارنا چاہتا ہے تو وہ کیسے اتارے گا؟ زیادہ زیادہ اتنا کر اور پھر گنا بھی دے گا کہ میں نے بھی تمہارے لیے وہ کیا جو تم نے میرے لیے کیا. تو سب سے بڑی سب سے بڑی انٹیلیجنس اور سب سے بڑی عقل مندی یہ ہے کہ ہم اللہ کے بندے بنے.
ہمارا فائدہ اسی میں ہے کہ ہم اللہ کے بندے بنے. الحمدللہ آج کا لیسن یہاں پہ ختم ہوتا ہے. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.